السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کہانی کی شروعات میں سندری نامی بچی ہوتی ہے جو اپنی ماتا پتا کے ساتھ ایک کھنڈرات میں پوجا کرنے آئی ہوتی ہے۔ وہاں اس کو ایک سانپ دکھ جاتا ہے جہاں پہ چیل اسے بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے اور بار بار اپنے نوکیلے نوک سے اسے کاٹتا ہے اور اسے زخمی کرتا ہے۔ سندری سے یہ دیکھا نہیں جاتا اور وہ اسے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے اور دیکھتی ہے ادھر اس کے ماں باپ پوجا میں لگے ہوئے اور وہاں پہ سندری جو ہے سانپ کے پیچھے بھاگ جاتی ہے اور اسے دیکھتی ہے کہ چیل اسے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا ہے اور وہ نیچے سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے پینک دیتی ہے اور سانپ جو ہے اس کی جولی میں آ گر جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور چیل اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لیکن سندری جیسے کہ تیسے وہاں سے پہنچ جاتی ہے۔ ادھر اس کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی غائب ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ادھر سندری جو ہے اپنی گود میں سانپ کو اٹھائے لے کے چپکے سے جا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کی آواز سن کر وہ رک گئی اور اس کے آگے جاتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے اور تمہاری چولی میں کیا ہے؟ لیکن سندری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تم نے کوئی کھانے کی چیز اپنی جولی میں چھپائی رکھی ہے؟ اس کی ماں اس کو کہتی ہے ابھی پوجا ختم نہیں ہوئی ہے، تمہارے جولی میں جو بھی کھانے کی کوئی چیز ہے اسے پھینک دو۔ اس کے ماں باپ اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہاری جولی میں جو بھی کوئی چیز ہے اسے پھینک دو۔ مجبوراً جیسے ہی وہ جولی نیچے گرا جاتی ہے کیونکہ اس کے لہنگے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کے ماں باپ دیکھ کے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن سندری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر جو ہے سانپ اس کے لہنگے سے کیسے نکل گیا۔ اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں چلو آ جاؤ، پہلے پوجا کرو پھر تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تمہیں بھوک لگی ہے، بس تھوڑا صبر کرو۔ لیکن سندری بار بار پیچھے دیکھتی ہے کیونکہ وہ پریشان تھی کہ آخر سانپ اس کی جولی سے کیسے گر گیا۔ جاتے ہوئے بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ لہنگے سے سانپ کیسے نکل آیا۔ گھر آتے ہی اس کے ماں باپ سارے گھر آ جاتے ہیں، ان کی پوجا ختم ہوتی ہے اور رات کو جیسے ہی وہ سو جاتی ہے اسے نیند میں وہی سانپ اور چیل نظر آ جاتا ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ اس کے لہنگے سے سانپ کیسے نکل گیا۔ یہی سوچ میں وہ اپنے بیڈ سے اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یقیناً ادھر آس پاس ہی ہوگا اور وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سویا پا کر باہر نکل جاتی ہے۔ ادھر سانپ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے کیونکہ سانپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے، اس لیے سندری کو کوئی شک پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کا ہاتھ ادھر کر کے آہستہ سے اپنی ماں کے بستر سے اٹھ جاتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ سانپ آخر میرے لہنگے سے کیسے نکل گیا اور کدھر گیا۔ ادھر دیکھنے کے بعد اسے ایک جھٹکا سا لگ جاتا ہے کیونکہ سانپ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور پورا خون میں لت پت تھا اور اسے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں اس واقعے کو یاد کرتی ہے کہ کیسے چیل اسے مار رہا تھا۔ ادھر اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے سندری اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے اور وہ سندری کو آواز دے کر باہر نکل جاتی ہے۔ ادھر سندری سانپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی ماں آ جاتی ہے اور سانپ کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور سندری سے کہتی ہے ادھر آ جاؤ، یہ تمہیں کاٹ دے گا، اور وہ ادھر ادھر چلانے لگتی ہے، لیکن سندری اسے خاموش کر دیتی ہے کہ ماں چیخنا نہیں ہے، یہ سانپ بہت ہی زیادہ زخمی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ ہم جس ٹائم پوجا کر رہے تھے اس ٹائم یہ سانپ مجھے ملا، اس کو چیل کوے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے تھے اور اوپر سے ایک چیل بار بار اس کو زخمی کر رہا تھا اور جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی میں اس کی مدد کے لیے بھاگم بھاگ دوڑی۔ سانپ سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے، ماں اس کی مدد کرو۔ سندری بار بار اپنی ماں سے یہی التجا کر رہی تھی کہ سانپ سے بہت ہی زیادہ خون نکل آ رہا تھا، لیکن اس کی ماں اس کو سمجھا رہی تھی کہ سانپ سانپ ہے، ہم جتنا بھی اس کی مدد کریں وہ ہمیشہ ڈستا ہی ہے۔ لیکن سندری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، جیسے ہی اس کی ماں اس کو کہتی ہے سانپ اسے آواز دیتا ہے کہ بے فکر رہو ماں جی، میں آپ کو کوئی بھی پریشان نہیں کروں گا، میں آپ کو ڈسوں گا بھی نہیں، میں ایک ناگن ہوں
और वो लोग मुझसे नागमणि छीनने की कोशिश करते हैं, और जिधर मुझे वो चील काट रहा था वो भी उन लोगों ने भेजा है। मेरे पीछे बहुत से सपेरे लगे हैं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो सपेरे के हाथ अगर मैं लगी तो मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मेरे से नागमणि छीन ली जाएगी। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी मदद करो। वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि जो है मेरा जुड़वा सांप भी उन्होंने कैद किया हुआ है, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, और यकीनन मुझे पता है उन्होंने मार ही डाला होगा उसे। सांप अपनी दास्तान सुना देता है, लेकिन इंद्र सुंदरी की माँ बहुत ही डर जाती है, लेकिन फिर भी उसकी कहानी को समझ पाती है। और नागिन कहती है कि अगर मैंने उनको हिलाक ना किया तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे और नागमणि चुरा कर उनका गलत इस्तेमाल कर देंगे। सुंदरी की माँ ये सब सुन लेती है, लेकिन वो नागिन से कहती है ठीक है, मैं सोचती हूँ, क्योंकि सुंदरी की बाप को सांपों से सख्त नफरत होती है, इसलिए वो डर जाते हैं। लेकिन नागिन ने अपनी सारी दास्तान सुंदरी की माँ को सुनाई। सुंदरी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ये सांप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इधर नागिन उसे कह रही कि बस कुछ दिनों की बात है, आप मुझे अपने घर में पनाह देंगे कि मैं किसी भी तरीके से वो नागमणि गलत लोगों से बचाऊं। इधर सुंदरी अपनी माँ से कहती है कि मुझे ये सांप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, और आप अब्बू से प्लीज़ कुछ भी ना कहें, क्योंकि अब्बू को सांपों से सख्त नफरत है, इसलिए वो उसे मार डालेगा। नागिन जो है ये सब कुछ सुन रही थी, और सुंदरी अपनी माँ से बार बार कह रही थी कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा है, इसलिए माँ तुम जल्दी से हल्दी लेके आओ, मैं इसके सामने खड़ी रहती हूँ ताकि ये डरे ना, इधर से भागे ना। इस वजह से सुंदरी अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों पे राज़ी कर लेती है, और वो मान जाती है कि ठीक है, हम इसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी के आगे मजबूर होती है। और सुंदरी को सांप पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी माँ हामी भर लेती है, और वो अपनी माँ से कहती है कि आप जाओ और हल्दी बूंद के लाओ कि इसके ज़ख्मों पर लगाए और इसकी चोट साफ़ करे। इसकी माँ आ जाती है और हल्दी और पानी लाकर उसको दे देती है कि उसके ज़ख्म पहले साफ़ करके उसके ऊपर फिर हल्दी लगा देते हैं। सुंदरी पानी से उसके ज़ख्म बड़े प्यार से कर देती है। उसकी माँ उसको देखती है और तसल्ली भी देती है कि काश हम पहले ही इसकी मदद कर सके और इससे इतना ज़्यादा खून ना निकलता। सुंदरी उसके ऊपर हल्दी लगा देती है उसके ज़ख्मों पर। उसकी माँ सोचती है और डर भी लगता है। सुंदरी उसको एक गड्ढे में डाल देती है और अपने बाप की डर से कि उसका बाप उसको ना देखे, क्योंकि उसके बाप को सांपों से सख्त नफरत होती है। सुंदरी हर रोज़ उसको दूध देती है और कहती है जल्दी जल्दी पी लो दूध, अगर मेरे बापू आ गए हैं तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुंदरी अपनी माँ के साथ जाती है स्कूल तैयार होने के लिए, और सुंदरी जैसे ही आगे बढ़ जाती है स्कूल जाने के लिए, सांप उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। सांप उसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। सुंदरी उसे कहती है मैं तुम्हें ज़रूर लेती, लेकिन उधर सारे बच्चे तुम्हें देखकर डर जाएंगे और डर के मारे तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, इतने में उनके बापू आ जाते हैं। उनके बापू सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन जान बचकर अनजान हो जाते हैं। उसकी माँ उसको कहती है कि सुंदरी जो है पहले पूजा करती है फिर स्कूल जाती है। उसके बापू ये देखकर खुश हो जाते हैं कि उसकी बेटी पूजा में लगी रहती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि सांप कहाँ गया। सुंदरी उसे कहती है कि मैंने इसको बैग में डाला है, और वो अपनी माँ के हवाले उसको कर देती है कि वो फिलहाल उसको गड्ढे में डाल दे। इधर सुंदरी स्कूल आ जाती है, लेकिन स्कूल में भी उसका ध्यान नहीं लगता, सारा ध्यान सांप की तरफ उसका होता है। और वो जैसे ही घर आ जाती है दूध पीने के लिए, रात हो जाती है कि उनके बापू आ जाते हैं। जैसे ही वो शाम को दूध पिलाने के जाती है, उसके बापू से कहते हैं बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, दूध इधर ही पी लो। उसकी माँ उसको कहती है हाँ ना, तुम्हारे बापू सही कह रहे हैं, दूध इधर ही पी लो।
उसकी माँ उसको कहती है, जाओ तुम जल्दी से उसको दूध पिलाओ, मैं तुम्हारे बाबू के साथ देखूंगी। सुंदरी जो है आगे निकल जाती है और जैसे ही इधर उधर देखती है कि उसके बापू अंदर गए, जल्दी से एक प्लेट में नागिन के लिए दूध रख देती है और नागिन से कहती है, आप जल्दी से बाहर आके दूध पी ले, क्योंकि मुझे बापू से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुंदरी जैसे ही रात हो जाती है नागिन को दूध देने के लिए आती है, लेकिन पीछे से उसके बाबू ये सब कुछ देख लेते हैं और जो उनका नौकर होता है उनको चुपके से इशारे से बता देता है कि तुम भीम वाले को इधर लाओ ताकि इस सांप को पकड़ ले, क्योंकि उसको सांपों से सख्त नफरत होती है। अगले दिन उनका नौकर एक सपेरे को ले आता है और सपेरा जैसे ही भीम बजने लगता है, सांप जो है नाचना लगता है, क्योंकि सांप को होश नहीं रहता और वो गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसको सुंदरी का बाप खड़े होकर उधर सब कुछ देख रहा है और इधर सांप गड्ढे से निकल जाता है अपने भीम बजा के उसको वश में कर देता है। सुंदरी के बाप ये सब कुछ देख रहा होता है कि किस तरह नागिन तड़प रही है और बाहर आ रही है। इतने में सुंदरी की माँ सुंदरी आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है कि इन्हें कैसे पता चला। सपेरा उसे बताता है कि उसको सांप की खुशबू आ रही थी कि इधर आपके घर में सांप है और ये शुक्र है, ये बहुत ही खतरनाक सांप है, जैसे कि तैसे मैंने इसको अपने वश में काबू कर लिया है। सुंदरी के बाप खुश होकर उसे पैसे देता है कि तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है और इसे जाके जंगल में फेंकाओ और कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सुंदरी उसे कहती है कि मुझे ये पालना है, इसको आप ना फेंके, ये मुझे बहुत पसंद है। सुंदरी का बाप बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, भला सांप भी कोई पालने की चीज़ है, ये तुम्हें काट देगा, ये बहुत खतरनाक है। सुंदरी उसे कहती है कि ये खतरनाक नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मैं इसको पालूंगी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका बाप उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार समझा लिया, अगर तुमने दोबारा सांप आम लेने की बात भी की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और मार दूंगा। वो सपेरे को जाके कहता है कि जाओ इसको दूर ले जाकर फेंक आओ। इधर सफेरा उसी सपेरे के पास आ जाता है जिसको नागन की तलाश होती है और वो नागमणि हासिल करने की कोशिश करता है। वो सपेरे से कहता है कि तुमने कितने सांप पकड़ लिए हैं, मुझे सांप दिखाओ कि तुमने उसमें वो नागिन पकड़ी है। सपेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही सांप उसे दिखाता है, लेकिन जो जो सफेरा हो जाता है जिसको नागमणि की तलाश होती है उसे उस सांप की पहचान है और वो उसे कहता है, नहीं ये वो सांप नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। इतने सारे सांप उसे दिखा देता है, लेकिन आखिर में उसे फिर कहता है, मैंने एक नया और बहुत ही प्यारा सांप पकड़ा है, जल्दी से उसे लाओ। सफेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही टोकरी उसके सामने आ जाती है, टोकरी खाली होती है और वो ज़ोर से पटक देता है कि यही वो सांप है जो इससे बखुद भाग गया है। सपेरे को खुद भी पता नहीं कि कैसे वो टोकरी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।